अंदर हमने डायरेक्टली सिर्फ यही रिले कर देना है कि जो ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी LDX के साथ में, हमने उसी चीज को बस यहीं पे रिले कर देना है कि हम ये कर. Frankly, beta, this is just like a puzzle I'm telling you. It's nothing. It's pretty easy. Okay, but obviously you don't know it, so this is what we have to do. It's pretty easy, I'm telling you. It helps you. You know why they have included this in your A-level program? It frankly develops a lot of your understanding and your competition thinking. Competition thinking के लिए बड़ा जरूरी है ये चीज. That's why they've added it. यूनिवर्सिटी में जाके आप इसको क्योंकि ज्यादा हाई लेवल पे इंशाल्लाह करोगे. Okay, next करते हैं. So if you've been able to explain it as well. Show the contents of the index register after the execution of the instruction DEC. Okay, now what is DEC? DEC basically means subtract 1 from the content of the register. Okay, we have to subtract 1 from the content of the register. So what do we have here? Who help me out? Mark. Sir. 67. Very good. Excellent. And how do you write 7? Yes. It was GF7. Beta, frankly, I could not hear you what you were saying. Can you hear her the way I can hear her? I can't hear you. 0, 1. Usma, do you hear her the way I am hearing her? या उसकी आवाज बहुत प्रोलॉन्ग हो के आ रही है और डिस्टॉर्टेड. Sir, अब आप बताइए. मानू बेटा बोलो. सॉरी बोलो आप. पता स्काइप पे इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह, देखना. अच्छा बोलो मानू. सॉरी बेटा, थर्ड टाइम मुझे नहीं सुनाई दिया. Was it Mahmood who was asking me, right? Okay, मानू मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. So ये जो DEC है ना, IX basically stands for your index register. Okay, IX stands for index register. Remember that. Okay, so it's saying DEC index register, which means that you would be subtracting 1 from the content of the register. So the content of my register over here is 8. So we will do -1. We get 7. And if I convert 7 into binary, I would be getting over here something like this. Would be I believe 0, 0, 0. Tell me if I'm correct. 0, 0, or 1, 2, 4. So this will be 1, 1, and 1. So this is equal to 7. Am I correct? Yes, sir. Is it clear all of you? Sir, ACC क्या होता है? हाँ? वो accumulator बताता है. Accumulator. It's a short form from accumulator. It's a temporary register. It's a register that holds the mathematical and comparison operators. Sir, index register और ACC में क्या फर्क है? Index register will be one of the register that will be pointing towards the content. It will be holding all the addresses of the content in the memory location कि कहाँ क्या चीज पड़ी है, क्या content पड़ा हुआ है. इसलिए इसका नाम दिया गया इंडेक्स के. आपकी बुक के एंड पे इंडेक्स नहीं होता कि पेज नंबर 59 पे क्या है, पेज नंबर 7 पे क्या है. Is it not the index? And is it just not locating to the content within the book? Yes or no? So it's just think of it as a page that has the definition of the location of the pages. Yes or no? Sir, ये content Yes, sir. location जी बेटा. ये content location बताता है. Absolutely. नहीं, कंटेंट होता है उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है. अच्छा, कंटेंट है कि उस जगह पे कोई नंबर पड़ा हुआ है, उस जगह पे हो सकता है कोई एड्रेस भी पड़ा हो. यूर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन एड्रेस, और वहां जब जाते हो वहां एक और एड्रेस पड़ा हुआ है, वो एड्रेस किसी और एड्रेस को दे रहा है. ये भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि यूर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द कंटेंट और डायरेक्टली कंटेंट को फेच करके कहीं उसको एक्यूमुलेटर में ऐड कर लो. यू गेट द पॉइंट. एक चीज होती है एड्रेस, एक चीज होती है कंटेंट. कंटेंट होता है, एड्रेस होता है. एड्रेस होता है पॉइंट करने के लिए चीज कहां पड़ी हुई है.
सर ऊपर जो 67 की वैल्यू दी हुई है वो क्यों नहीं इधर आएगी? कौन सी बेटा? नहीं पर जो हमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है वहाँ यहाँ 67 की नहीं आई। देखो बात सुन रहे नहीं, पॉइंट 67 का नहीं है, पॉइंट है व्हेन वी टॉक अबाउट डी, उसने कमांड हमें दी है, ही हैज गिवन अस दिस कमांड DEC इंडेक्स रजिस्टर, तो ही इज रिफरिंग टू इंडेक्स रजिस्टर। पहली बात तो एक समझ आ गई आपको, DEC इंडेक्स ओके इंडेक्स रजिस्टर है 8, तो वो राइट रजिस्टर की बात कर रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन कंटिन्यू हुआ होता तो हम उसको कंसीडर करते हैं, मगर नहीं हुआ होगा ना। ओके इट्स 7 इट्स नॉट 67 ठीक है। आर यू श्योर? सिर्फ मुझे नहीं समझ आई why it's 7 and not 67. आपको समझ आ गई कि आप कंफ्यूज हो गई? आपको कोई भी कंफ्यूज कर दे, क्या हो जाता है देखो, that's why you just need a confusing thing. IX बेटा क्या है? IX is the index register. So if I look at the content of the index register, बेटा वो क्या था? 8. Agree with me? 8 था ना? Yes. तो जब मैं इसको कहूंगा DEC8 means subtract 1 from the content of the index register ना, जो index register में जो भी content है 8 था ना, उसमें से -1 कर दो, और जो भी content तुम्हारे पास Oh, ये लेकिन जो भी कंटेंट तुम्हारे पास आएगा उसको कन्वर्ट बैक कर दो आप इनटू दिस फॉर्म। यस और नो? ओके समझ आ गई। वेरी गुड, यानी कि हम इसमें एड्रेस ला ही नहीं रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके थैंक यू। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा अगला पार्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ओके मगर इसमें यू हैव टू स्टे विद मी, और एक एक चीज हमें सीखनी पड़ेगी साथ। we will do it. Complete the trace table on the opposite page for following assembly language program. So ये मेरे पास different मेरी commands हैं, मेरे ख्याल I should not make a lot of mess, फिर काम खराब हो जाएगा। I should not be doing this. Okay. So सर ट्रेस टेबल क्या होता है? sorry बेटा, trace table नीचे आ रहा है ना? ट्रेस ये trace table हम इसको complete करेंगे। You will just get it, don't worry. अच्छा इसमें क्या है मेरे पास, ये है जो भी है लीव इट राइट नाउ, इसको हम देख लेते हैं। ओके ट्रेस टेबल यहां तक एंड हो जाता है, ये आपके बेसिकली होते हैं आपकी वैल्यूज होती हैं, ये उसने डिफरेंट एस्की कोड दिए हैं कि 118 इसका एस्की कोड पता है ना, @ का 64 होता है, 65 ए कैपिटल ए का होता है, 66 बी का होता है, सो एंड सो उसमें बताए हुए हैं जो भी है, ठीक है ना। डिफरेंट एस्की कोड 256 तक होते हैं, ही जस्ट गिवन यू सम, ठीक है जो भी है। ट्रेस टेबल है, इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस है मेरे पास, दीज आर माय इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस, सो दीज आर माय इंस्ट्रक्शन एड्रेसेस, ये गिवन है इधर, ठीक हो गया, ओके राइट। देन आई हैव सम वर्किंग करनी है, तो देन आई हैव माय एक्यूमुलेटर्स, एंड ये मेरे पास यहाँ भी गिवन है, मेमोरी एड्रेसेस 100 101, एंड देन आई हैव इंडेक्स रजिस्टर है और आउटपुट है, ठीक हो गया। नाउ लेट्स सी, पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि LDD 100, व्हाट इज LDD 100? It means load 100. So if I have to load 100, now whenever you have to complete the trace table question, you have to load everything over here in the trace table. Accumulator में accumulator की चीज जाएगी, 100 में जो content है 100 की जगह पे जाएंगे, okay, 101 की लोकेशन में जाएंगे, 102 103, okay. The examiner has given us just the following, तो हमने इसको फिल करना है। अब इसमें ये आपने नहीं सोचना कि उसने हमें बाकी क्यों नहीं दिए, उसने दिया ही हमें इतना है, हमने इसको करना है। इंडेक्स रजिस्टर में क्या कंटेंट आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज कंप्लीटेड। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इफ आई हैव इज LDD 100 means is load 100, whatever content you have in 100 you load it, whatever I have in 100 is 20, so 20 will be loaded over here. Sir, the 100 here refers to the instruction address. Absolutely correct. So 20 will load हो गया, ठीक हो गया एक्यूमुलेटर में, ठीक है। सर आई एम सॉरी मुझे 20 नहीं समझ आया कहाँ से आया। अच्छा देखो बेटा, उसने लिखा है LDD 100 ओके लोड 100, सो 100 पे जाके 100 पे व्हाट कंटेंट, इधर 100 की मेमोरी पे व्हाट कंटेंट डू आई हैव, 20 ओके ओके मेमोरी है ना, दिस इज मेमोरी, तो 100 के में 20 है, तो 20 इधर आ गया। We just swapping things, हम चीज को वहां से उठा के यहाँ रख रहे हैं, वहां स्टॉक यहाँ रख रहे हैं, वहां स्टॉक यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर्स ये तो करते हैं, रजिस्टर्स
डिफरेंट चीजों को उठा के डिफरेंट जगहों पे रखते हैं सो दैट प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए ना। अगर एक ही टेबल होगी, उस टेबल पे आप चीजें स्वैपिंग करते रहोगे तो मिक्सअप हो जाएंगी। व्हाट इफ यू हैव 4 टेबल एंड जल्दी जल्दी चीजों को स्वैप कर रहे हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। ठीक है, अच्छा अगला ये पॉइंट हो गया हमारा 51। add 102, क्या मतलब add 102? add 102, 102 पे क्या है? 1 है। 102 पे क्या है? 1 है। ठीक है ना? सो इफ आई add 102 तो क्या हो जाएगा? 51 पे आ जाएगा 21। ठीक हो गया? एग्री विद मी? सर ऊपर वाले 102 और नीचे वाले 102 में क्या फर्क है? बेटा एक ही है, आप देख रहे हो एक ही चीज है। वही उन्होंने हाँ जी। ये उन्होंने वर्टिकल डिस्प्ले किया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले कर दी, वही चीज है। ओके ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है? अब देखें, ये हो गया पार्ट। प्लीज ऑल ऑफ यू स्टे विद मी। मुझे ना कहना कि एंड पे के सर वो पॉइंट नंबर 1 की समझ नहीं आई थी, वो सारा लिंक्ड है ना। सो इज दिस डन? मैं टिक कर जा रहा हूं। सर ये हमें पता होना चाहिए ये जो एलईडी एड और एसटीओ बेटा ये देखो ना, ये यहाँ सर एक्सप्लेन है और ये Sir, this will be given in the paper, sir. always, this always been the paper. Okay. They cannot ask you to cram this, obviously not. Okay, not at this level. Okay, कंप्लीट टेस्ट में हो गया, ये हो गया। ठीक है, स्टोर 103 क्या है? स्टोर 1, अच्छा स्टोर एट लोकेशन 103, तो क्या स्टोर एट 103? सो 52 पे व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टोर 21 एट 103। यू गेट द पॉइंट? स्टोर एट 103। सर 21 क्यों? 20, क्योंकि अभी तक एक जो क्यूमुलेटर में whatever is there in the accumulator वही फर्दर प्रोसीड होगा ना। accumulator क्या है? it's a temp file, it's a temp thing, उसमें से चीजें उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ अब, like I just explained you। ओके सर। is it temporary? सर हाँ, सर अगर आप कोई भी 103 की कोई वैल्यू पूछेगा तो मतलब अब वो 21 होगी, 0 नहीं होगी। absolutely। अब बिल्कुल अब से आगे you're right, क्योंकि every time the value is changing। अब मेरे क्यूमुलेटर की वैल्यू 21 हो चुकी है, which is at the memory location of 103। Am I right? So accumulator से I've gone to 103 लोकेशन पे। ठीक है, 50 सर ये एचटीसी के 21 के नीचे हम 21 नहीं लिखेंगे ट्रेस टेबल के अंदर? नहीं बेटा, उसने कहा है ना, देखो वो कह रहा है कि स्टोर, जब हम स्टोर करते हैं ना, स्टोर 103 का मतलब होता है, ये आपको याद आ जाएगा, स्टोर 103 मतलब कि गो एंड स्टोर इट नाउ, इस क्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर कर दो 103 में। ओके 103 लोकेशन में जाके टू स्टोर इट नाउ। अच्छा, लुक एट द नेक्स्ट वन व्हिच इज इंटरेस्टिंग, प्लीज इसको गौर से देख लो। इसमें थोड़ा मुझे प्रॉपर टाइम लगाना पड़ेगा, हो सकता है जल्दी समझ आ जाए। LDX 100, okay, now what do you mean by this? You do remember what was LDX? Form the address, 21 plus 1 form the address from the address plus the content of the index register, copy the content of the calculator। so इस क्वेश्चन में जो हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 1। एग्री ना? पहले में 1 दी हुई है, एग्री? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो जब हम इसको करेंगे, when we will do is load 100, तो क्या होगा? 100 plus 1 is equals to 101, एग्री? और याद है आपको LDX क्या कहता था कि when you get this new value, this should point to the memory location of where the content is there। so 101 में क्या है? 101 में 100 है। 101 में 100 है कि नहीं है? 101 में क्या है? 100। सर हम 100 का 20 नहीं लेंगे उसका कंटेंट? नहीं बेटा, देखो अब दोबारा देखो, पढ़ो इसको, देखो form the address location address plus the content of the index register, copy the content of the calculated address to accumulator, copy the content of this calculated address to the accumulator। so होगा क्या
कि जब मैं कह रहा हूं ना लोड 100 जो है will be added to 1 और जो भी आएगा this will now point to सर हम 100 को 20 क्यों नहीं ले रहे, हमारा 21 आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हम we are not dealing with we are dealing with LDX. LDX basically is your index addressing. We are not talking about direct addressing. जो आप बात कर रही हो वो direct addressing की है, उसमें ऐसा होना था। हम index addressing की बात कर रहे हैं कि हम इंडेक्स को लोकेट करेंगे, इंडेक्स में हम पे कंटेंट डालेंगे इंडेक्स रजिस्टर को और फिर वो जब पॉइंट कर रहा होगा उसके कंटेंट को उठाएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। सी सर ये भी तो हो सकता है ना, आप जैसे बता रहे हैं उन्होंने पहले कहा हुआ है कि एड्रेस जो 100 का एड्रेस लेना है और उसका कंटेंट लेना है, 1 इंडेक्स का कंटेंट लेना है। हाँ इसकी ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। जी बिल्कुल सही। तो ये इसका जो कंटेंट है इस पे हमने वन ऐड किया, तो जब ये आया फिर इसको दिस शुड नाउ पॉइंट टू द कंटेंट। सर तो अब हमने पुरानी वैल्यू डिस्कार्ड कर दिया, तो अब हमारी जो नई वैल्यूज होंगी वो इस पे डिपेंडेंट होंगी। हर बार चेंज हो रही है ना, हर बार चेंज हो रही है। अब हमारा अगर 101 हो, अब हमारा हो गया 100, अब 100 हो गया ना, तो हमारा नेक्स्ट कहाँ था हम वी वर एट विच पॉइंट 53। तो 53 के क्यूमुलेटर में 53 के क्यूमुलेटर में हमारे पास अब आ जाएगा वी शुड हैव इज 100। एग्री? यस 102 होना चाहिए 102 मुझे यहाँ पर। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि हमारे जो 101 आया है उसके बाद फिर हमने नीचे 101 के साथ एडजस्टेंट वैल्यू क्यों ली है? ये देखो 101 का 100 ही है ना, ये देख लो। we added the index register के content को to the content of this as what LDX is. So we added the both contents. We landed at 101. So 101 जो आपका एड्रेस है वो बेसिकली पॉइंट कर रहा है इस कंटेंट को, और उस कंटेंट को हमने क्यूमुलेटर में डाल के तो डिस्प्ले करा दिया। तो उसके अंदर जो +1 भी लिखा हुआ था, नहीं किधर तो इंडेक्स के जगह +1 लिखा हुआ था। इंडेक्स उसका था, उसका होता है, ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। Sir, is example में are we using 2 tables? No, you ignore, are you talking about the previous one? You ignore this one. No, this one. Yeah, we are using this table. Sorry. Yeah. And this is the same. वो वैसे में उसका फर्क है, वो एक ही चीज है। तो सर पहले उन्होंने 100 को डिफाइन किया हुआ है and after that we're figuring out the rest of them. Absolutely. अब आगे ऐसा करो, you help me out. Add 100. Add is what 100. पहले देख लेते add है क्या? Obviously add means 100. Add the content of the given address to accumulator. अच्छा, अभी accumulator में क्या है हमारे पास? अभी accumulator में हमारे पास क्या 100 है? Agree ना? अच्छा, तो 54 क्या कह रहे हैं? 54 में we are saying is that we have to, I'm talking about add 100. So add 100 क्या होगा? 120. Very good, excellent. 120 हो गया, well done. All of you agree? सर ये 120 क्यों हुआ है? 120. Previous value क्या थी? Accumulator. What did the accumulator have previously? The accumulator had 100. agreed. So what are we saying now? What we're saying now is add 100. And add 100 is what? No, add 100 is not the content. What do we have at 100? The content. Okay. 20. Don't we have 20? Yes sir. So 20 will be added to it. 20 will be added to it. सर हमें ये कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने जो पिछली वाली वैल्यू है उसके साथ अब अगली वाली वैल्यू के साथ ऑपरेशन करना है, या फिर हमने डिफरेंट वैल्यू लेनी है? जैसे हमने पहले 21 आए और उसके बाद फिर हमने 21 उससे अगले वाले 21 को साइड पे कर दिया, देन वी केम अप विद द होल न्यू 100। देखो बात सुनो, द पॉइंट इज ये एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग ऑन,
ठीक है ना? So as the values keep on changing, you have to follow them. तो मेरी अब जो वैल्यू इधर आ रही है वो इसी को मैं यूज करूंगा, मैंने तो वापस में गया ही नहीं. I changed 20 into 21, then we store 21 into the content of 103, then we change it to accumulator 100, चेंज किया हमने, इंडेक्सिंग करके 100 किया उसको, फिर हमने दोबारा उसमें ऐड कर दिया मेमोरी लोकेशन के कंटेंट पे 100 में जो पड़ा हुआ 20 हमने वो ऐड कर दिया accumulator में, और फिर वो बन गया 120. So every time we are, this is what the accumulator does, help us to do these calculations and finally store them in accumulator. So accumulator is doing its job. Your memory address registers, these are the memory address registers. ये अपना काम कर रहे हैं, ये आपका इंडेक्स रजिस्टर है, ये एक सेपरेट चीज है, ये एक सेपरेट चीज है, ये एक सेपरेट चीज है. कब मैंने आपको पहले भी कहा था कि कभी हम डेटा उठा के यहां रख रहे हैं, कभी यहां रख रहे हैं, कभी यहां रख रहे हैं, following the following instructions. ओके, Get the point? समझ आ गया. हम यहां तक अब मुझे मेरी आगे हेल्प करो आप. CMP 101, व्हाट इज CMP? CMP होते कंपेयर के लिए, कंपेयर कंटेंट ऑफ क्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ एड्रेस. अब कंपेयर करते हैं कि जो क्यूमुलेटर में व्हाटएवर वी हैव with the content of address. So I am saying over here is compare 101. So I have 101, and what do I have in my accumulator? 120. Are the values equal? No, they are not. They are not, right? 120 and 101 are not the same. So let's see the next command. Let's see the next command. JPE 58. Yes, sir, we won't write anything for 55 then. No. In case of this, this will be empty. In fact, I have to 55, 56. Sir, 0 नहीं होना चाहिए for false. Empty छोड़ दो. Okay. 0 is a value, बेटा. हम 0 लिख नहीं सकते. 0 holds a value. 59. I'm sorry, I'm not using graphic tab. So 60 and 61. We have to complete the trace table, ना? ठीक है. कैसा केस होगा कि हम यहाँ वैल्यू लिखें, अगर दोनों सेम होंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1. मैं उस तरफ आऊँ बेटा, मैं भी आता हूँ उस तरफ, आपसे कह रही हूँ. मगर अब अगली कमांड देखो ना, अगली कमांड है आपकी, ये होगी ना JPE. So this was comparison. Compare the content of, compare 101 with whatever is there in your previous accumulator, which was 120. ठीक हो गया? So if I compare, उसके बाद आता है कि JPE. JPE basically stands for jump, but you have to jump if it's true. So you jump to the given address. JPE 58 तब करोगे अगर ये है, मगर ये नहीं है. उसके बाद कमांड आपकी आ रही है, you get my point. You will jump to 58 if this condition is true. So this means this will not happen. Then comes jump 59. Why jump 59? 59 means that following the comparison, you do the comparison, you jump to the address. If the value is false, yes, that is true. Value is false. 120 was not equal to 101. So I will perform JPN. And if I perform JPN, JPN says over here is 59. Jump 59. Now what is 59? Jump 59. What is it 59? 59 पे ये है. अब 59 क्या है? Increment IX. Okay? वैसे to be honest, मैंने कितने skip कर दिए अभी तक? I went from 56. I've skipped 56, 57, 58. So I have is over here how much? 55, 56, 57. Sir, jump me. Yeah. Jump. यानी कि बीच वाली सारी मिस कर दे. क्योंकि वो कुछ नहीं हो रहा ना. In particular address instruction addresses पे nothing is happening because the following देखो, the following instructions, are they being met? I did not meet this instruction. I did not meet this instruction. Did I meet? No, I did not. But I'm here now. If I'm here now,
तो ये भी क्या कह रहा है, इवन 57 भी नहीं हो रहा एग्जीक्यूट, ये कह रहा है गो टू 59, एंड व्हेन आई गो टू 59 इट सेज इंक्रीमेंट माय इंडेक्स रजिस्टर, गो एंड इंक्रीमेंट माय इंडेक्स रजिस्टर. So let me increment my index register. So increment means what? If you can recall, add one. Add one. Yeah, add one to the account accumulator. So what happens? I add one to my accumulator. Add one to my index. Sorry, add one to my index register. My index register क्या है? शुरू से वन ही रहा है ना हमेशा अभी तक तो. तो अब क्या होगा 59 पे Two. सर हम 120 में 1 ऐड नहीं करेंगे? नहीं बेटा, इंडेक्स रजिस्टर ना 2 हो जाएगा, पहले 1 था ना. ओके बेटा इंडेक्स इंक्रीमेंट इंडेक्स रजिस्टर, एग्री? इज दिस नॉट द कमांड 59? डू यू एग्री विद मी? इज दिस द कमांड? यस सर. अच्छा, so what does it mean? You tell me, what does it mean? Add 1 to the contents of register. Absolutely correct. It means add 1 to the contents of the current instruction register. Let me be specific. तो मेरा current क्या है? मेरा current तो 1 था ना. अभी have we changed this one? We haven't changed this one. Please अब इसको refer ना करना. मैं इनकी बात नहीं कर रहा. Index register तुम्हारा 1 ही था ना अभी तक. Yes or no? Yes sir. वो तो अब चेंज हो रहा है ना. So 1 plus 1 is 2. Is it not changing now? Yes. है ना? अच्छा, अब देखो we are almost done. Don't be. अच्छा 2 हो गया. फिर इसके बाद इसका अब we are done with this. Add 101. It's quite irritating, I know, but it's fine. You'll like it eventually. Add 101. Now what is add 101? Okay. So what do we have? We are done with 60 skip नहीं कर दिया. हाँ 98 नहीं किया. नहीं, 60 पे है ना. 60 add 101. हम सीक्वेंस पे जा रहे हैं. इसे 60 पे सर LDX 98 है. Oh sorry. I'm sorry. LDX 98 क्या था? आप स्किप कर दिया मैंने. LDX क्या है? Oh yes, again LDX 98. Please help me out. तो LDX 98 आप लोग फिर सोच के जवाब देना. ये अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. LDX 98 क्या होगा? LDX मैं बात कर रहा हूँ ये LDX. I'm sorry. Yes. LDX 98. Sir, we add one to the ASCII value. तो नहीं करेंगे. आपका current, remember what is your current instruction register now? One. Two. No. Two. So 2 will be added to 98. 2 will be added 98 ना? 98 हाँ 98 98 plus 2 100. Yes or no? Yes. Yes sir. यही होगा ना? 98 plus 2 फिर क्या करेंगे हम? फिर आंसर 20 आएगा क्योंकि हम 100 वाले को देखेंगे. सर हम 100 की मेमोरी एड्रेस देखेंगे तो वो 20 आता है. एक सेकंड, लेट मी कंफर्म. जी ठीक है. यह आ गया आपका. नहीं सॉरी. और फिर हमारा क्या होगा? What else we left with? Output. Add 100. Add 101. Add 101. 120 हो गया Yes. है ना? Add क्या हो गया? 121. 120 बेटा. 121 क्यों? 20
कंटेंट को ऐड करना है 100 पे। हाँ 120 हो गया ना, और फिर आखिरी क्या आउट करना है, आउट मतलब डिस्प्ले कर दो कि 120 इज व्हाट x, तो x की वैल्यू हम यहाँ डिस्प्ले करा देंगे फाइनली। यस और नो LDX का क्या मतलब? बेटा आज जब अच्छा आपको नहीं पता, मैंने अगर आपको नहीं बताया, जो आउटपुट होती है ना आउट में, अगर इफ दे हैव नॉट टोल्ड यू हियर आउटपुट, ये देखो आउटपुट टू द स्क्रीन द कैरेक्टर हुज ASCII कोड वैल्यू इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। आप समझे? सर आउट पहले भी आया था 58 पे, तब हमने डिस्प्ले क्यों नहीं की? नहीं आया, आया था नहीं, वो जंप किया था हमने। वी जंप्ड, नहीं उस 58 पे 58, वो बेटा जंप कर गए थे ना, हम स्किप कर गए थे इसको, वी so जंप, we ignore the others. या वी नो वी गो इन सी, डोंट गो बैक। हाँ अगर ऐसा होता है कहीं कि इधर कहीं भी जंप बैक, तो फिर वी हैव टू गो बैक इन सीक्वेंस। जंप कहीं तो है, जंप कैन गो एट एनी लोकेशन, गेट द पॉइंट। तो आउट उसने कर दिया, Yes sir. ठीक है। अब देखो दिस इज नॉट इनफ, मैं इंशाल्लाह वी विल सॉल्व मोर पेपर्स। अब आपको मैं पेपर तो प्लीज ट्राई करो, इफ यू कांट डू इट नो इशू। मगर एक सेकेंड, मैं इसका मार्किंग स्कीम से कंपेयर कर लें आंसर्स अपने, कहीं जस्ट नीड टू चेक दिस वाज कई दफा Sir, I'm so sorry, but please फिर बता दें कि LDX क्या होता है, because वहाँ पे मैं इंटरनेट लैग कर रहा था तो मैंने सुना नहीं। क्या क्या होता है बेटा? LDX stands for बेटा LDX ये करता है कि फ्रॉम द एड्रेस, ओके, फ्रॉम द एड्रेस प्लस द कंटेंट जो भी इंडेक्स हिस्ट्री में होगा, जो भी होगा, दैट विल बी एडेड टू द करंट एड्रेस, एंड देन जो हमारे पास आएगा, कॉपी द कंटेंट ऑफ दिस दैट यू जस्ट गॉट, दिस दैट यू जस्ट गॉट, कॉपी द कंटेंट ऑफ दैट टू द एक्यूमुलेटर। सो जो भी गिवन एड्रेस आपके पास है उस पे आप ऐड करो, उस पे ऐड करो IX को, जो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसके कंटेंट के एड्रेस को उधर डिस्प्ले करा दो। यस और नो? या यानी कि हम जो वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, and then we'll still be नीचे वाले के अंदर हम वहाँ पे वो फिर उसको करेंगे कि वो किसके साथ है। अच्छा आप एक काम करो, आपने यही पेपर दोबारा करना है, मैं आपको पेपर नहीं दे रहा आज, ठीक है? Okay. देखो वी डोंट हैव टू विन रेस ओवर हियर, हम जो सा टॉपिक करें अच्छी तरह करें, ये मैंने आपको बस सिलेबस खत्म तो नहीं कराना ना, आप ये दोबारा कर लो। अच्छा पहले हमारे ये आंसर आए थे, मैं जल्दी जल्दी देख लूं, इज दिस व्हाट आई डिड, नॉट आई, वी डिड, गलती होगी तो आपकी ही गलती, नहीं होगी तो मेरी, ओके दैट्स सो मीन, ओके एनीवे, so this was it, accumulated content 0101, ठीक है, और explanation तो we discussed it ना, we know the explanation, right? Any problem? और फिर हमने ये डिस्कस किया था, इसका 7 आएगा, ये बिल्कुल सही है, ये आंसर ये भी सही है हमारा, ठीक है, एग्री? एंड देन जी बेटा, सॉरी बेटा क्या? दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो मैंने भी दी थी आपको, डिड आई नॉट? दिस इज व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? इसको डायनरी से बाइनरी में किया है ना? जी जी, एनी सर इफ यू डन, मैं आपसे कुछ पूछ लूं? बेटा मैं बस कंपेयर कर लो, एक सेकंड बस, आंसर्स मैं कंपेयर बस कर लूं, मुझे एक सेकंड दो ना, मैं खुद भी देख लूं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 20, 21, 21, 100, 120, 2, 20, 120 and X, perfect। 62 नहीं में लिखा, फिर हमने जो
नहीं, गलती। सर अगर हमने 58 ना किया होता तो उसका आउटपुट हम जो भी उसका आता वो भी हम उसी वाले कॉलम में लिखते हैं जिस कॉलम में हमने x लिखा है। जी जी बिल्कुल। ये देखो, यू कैन ऐड योरसेल्फ एज वेल, मगर ये भी एग्जामिनर्स को गलत नहीं कहना था, ये सही था, दिस इज नॉट रॉन्ग। सो वी गॉट 62 पे तो कुछ और लिखा हुआ है जी बिल्कुल लिखा हुआ है। ऊपर जो देखो, द रीजन इज के एग्जामिनर डिड नॉट प्रोवाइड अस, यू कैन रीड द एग्जामिनर रिपोर्ट एज वेल। अगर आप जगह नहीं दी हुई और आपने यहाँ पे लिख दिया तो इट्स फाइन, एग्जामिनर विल नो कि दिस नेक्स्ट लाइन, या वो तो उसने आगे लाइंस ड्रॉ कर दी है ना, ही शुड हैव गिवन अस मोर स्पेस। सर जहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे वहाँ पे तो उन्होंने 62 पे कुछ और नहीं लिखा हुआ था। 62 तो था ही नहीं बेटा, 62 था ही नहीं, 62 आउट है ना, यहाँ 62 नहीं था हमारे पास ना, सो आई रोट ओवर हियर, मैं ये कह रहा हूँ, ओके सर। आई रोट दिस सर ओवर। क्यों नहीं था? अगर उन्होंने मांगा उन्होंने देना भी नहीं तो हम खुद बना ले। खुद बना लो, यहाँ लिख दो, इट्स ओके, डजंट मेक अ डिफरेंस, लास्ट वैल्यू इट डजंट मैटर। अच्छा दोबारा ज्वाइन करने, क्योंकि वी हैव लेस देन अ मिनट, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ।